वेलकम टू माय चैनल लैंग्वेज जंक्शन। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे डेली यूज के कुछ सेंटेंसेस। तो हमारा आज का पहला सेंटेंस है, सुबह सुबह मुझे ये टेंशन मत दिया करो। डोंट गिव मी दिस टेंशन अर्ली इन द मॉर्निंग। डोंट गिव मी दिस टेंशन अर्ली इन द मॉर्निंग। इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, प्लीज डोंट स्ट्रेस मी आउट अर्ली इन द मॉर्निंग। प्लीज डोंट स्ट्रेस मी आउट अर्ली इन द मॉर्निंग। अगला सेंटेंस है, कल तक यहाँ से कूड़े का ढेर हट जाना चाहिए। This pile of garbage should be gone by tomorrow. This pile of garbage should be gone by tomorrow. इस सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते हैं, Make sure this heap of trash is cleared by tomorrow. Make sure this heap of trash is cleared by tomorrow. कल तक मुझे यह सारा मकान खाली चाहिए। I want this entire house emptied by tomorrow. I want this entire house emptied by tomorrow. या इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, I need this whole house vacated by tomorrow. I need this whole house vacated by tomorrow. हमें किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। We should not treat anyone badly. We should not treat anyone badly. इस सेंटेंस को हम इस तरीके से भी बना सकते हैं, We should not behave poorly with anyone. We should not behave poorly with anyone. हमारी जिंदगी में जो भी होता है वह हमारे जीवन में किए हुए कर्मों का ही परिणाम होता है। Whatever happens in our life is a result of the actions we have taken. Whatever happens in our life is a result of the actions we have taken. इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, Everything that happens in our life is the outcome of our own actions. Everything that happens in our life is the outcome of our own actions. नेकी कर और दरिया में डाल, ऐसे विचार को मन में रखते हुए ही हमें किसी की मदद करनी चाहिए। We should help others with the mindset of do good and cast into the river. We should help others with the mindset of do good and cast into the river. ये एक मुहावरा भी है, नेकी कर दरिया में डाल, तो इसे हमेशा इसके साथ ही यूज करेंगे, do good and cast into the river के साथ इस सेंटेंस को ऑलवेज हम बनाएंगे। आपको क्या लगता है, वह मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लेगी? What do you think? Will she accept my proposal? What do you think? Will she accept my proposal? और इसे ऐसे भी बना सकते हैं, Do you think she will agree to my proposal? Do you think she will agree to my proposal? ये दोनों ही सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। तुम्हें यह लगता है कि यह मेरी वजह से हुआ है? Do you think this happened because of me? Do you think this happened because of me? इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, Do you believe this happened because of me? Do you believe this happened because of me? अब यहाँ पे जैसे सिंपल इसमें क्या क्यों ये सब नहीं लगा हुआ है, लेकिन फिर भी ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि मतलब क्या हुआ है, मेरी वजह से हुआ है, यानी यहाँ पर ये इंटेरोगेट कर रही है, इसलिए ये क्वेश्चन मार्क सेंटेंस है हमारा। तुम्हें क्या लगता है, किसकी गलती है? Who do you think is at fault? या इसे ऐसे भी बना सकते हैं, Whose fault do you think it is? Whose fault do you think it is? मुझे तो लगता है कि तुम दोनों ने ही गलती की है। I think both of you are at fault. I think both of you are at fault. और इसे ऐसे भी बना सकते हैं इस सेंटेंस को ही, It seems to me that both of you are to blame. It seems to me that both of you are to blame. क्या तुम्हें पता है, रीमा को तो मिर्गी के दौरे पड़ते हैं? Do you know that Rima has scissors? Do you know that Rima has scissors? और अगर इसे और भी एक्यूरेट वे में बनाना हो तो मिर्गी के दौरे के लिए एपिलेप्सी वर्ड को यूज किया जाता है। Are you aware that Rima has epilepsy? Are you aware that Rima has epilepsy? पर तुम्हें कब यह पता चला? But when did you find out about this? But when did you find out about this? या इसे ऐसे भी बोल सकते हैं हम, But when did you learn about this? But when did you learn about this? मुझे तो उसकी दूर के रिश्ते की भाभी ने बताया था। I was told by her distant relative sister-in-law. I was told by her distant relative sister-in-law. और सेकंड वे है बनाने का, I was informed by her distant relatives sister-in-law. I was informed by her distant relative sister-in-law. Do you think I am stupid?
तुम क्या मुझे बेवकूफ़ समझते हो। इसे ऐसे भी बना सकते हैं, डू यू थिंक आई एम स्टूपिड, और आप ऐसे भी इसे बोल सकते हैं, डू यू थिंक आई एम फूलिश, डू यू थिंक आई एम फूलिश। दोनों ही तरीक़ों से बिल्कुल करेक्ट है सेंटेंस। वैसे ये दूसरा सेंटेंस है, तुम क्या मुझे पागल समझते हो, डू यू थिंक आई एम क्रेजी, और इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, डू यू थिंक आई एम आउट ऑफ माइंड, डू यू थिंक आई एम आउट ऑफ माई माइंड। दोनों ही करेक्ट है। ये थे हमारे आज के कुछ डेली यूज सेंटेंस। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में।